Hello everyone. The examinations are coming closer. Now CAT का exam आज से कुछ दिन बाद है. Then once CAT is over, you will all be engaged in the revision of SNAP examination. But we have taken care of it already. So a few days back, I would say around 15 days back, we have covered the entire section of logical reasoning with the questions of data interpretation that came in SNAP 2024. Now, my dear friends, today we are going to look at the entire paper of SNAP 2023, the questions which came under logical reasoning and data interpretation, right? नाउ लास्ट जो हमने सेशन देखा था उसके अंदर हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की थी अराउंड द पैटर्न ऑफ दिस पेपर, the questions, the topics which are most repeated questions. Okay, once again I would say that questions on series, coding, decoding ये दोनों ही papers में देखे गए हैं. Then blood relations was seen in both the papers. Then I can say that the questions on clocks and calendars, yes, we have seen one questions from each of these areas. So there are some topics which are important. इनपुट आउटपुट सीक्वेंसेस का क्वेश्चन हमने स्नैप 2024 में नहीं देखा, बट देखते हैं कि स्नैप 2023 में हमें वो क्वेश्चन मिलता है या फिर नहीं. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. Now I'll be leaving behind, like I did in the last session, I'll be leaving behind the questions of critical reasoning that was covered by Vikrant sir. Okay, so we'll be looking at only the questions of logical reasoning as well as the questions of data interpretation. Now, the first few questions were based on critical reasoning, so I'll be leaving them through. So, but इनको count करना जरूरी है कि कितने questions आए थे, right? So, this question, implicit assumptions, so assumptions पे question है, question number 1. Then question number 2 is on statements and assumptions. Question number 3 is, I can say yes, it is again statement and assumption and cause and effect. Okay, so again from critical reasoning. Statement, question number 4 is also on critical reasoning. Question number 5 is on critical reasoning, right? Strong and weak argument, and this is also critical reasoning. So we can say that 6 questions अभी तक हम देख चुके हैं. 7th is also from statement and cause and effect, course of action, right? 7 questions, and question number 8 as well, statement, course of action. Now looking at question number 9, statement, conclusion. This is also from critical reasoning. Now I can say that out of 25, 9 questions are of critical reasoning. The remaining 16 questions we'll be looking at now, and then some questions on data interpretation also. So let's start from this question number 10. Okay, now group coding हमने स्नैप 2024 में भी देखा था, स्नैप 2023 में भी ग्रुप कोडिंग है. सो लेट्स क्विकली टैकल दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले फाइंड आउट कर लो, फाइंड आउट क्या करना है. ओके, सो एफसी इज द कोड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. एफसी का कोड फाइंड आउट करना है. एफसी यहां पे है एंड दैट्स इट. एफसी सिर्फ एक ही जगह पे है. तो एफसी का कोड की टू बी हैप्पी, की टू हैप्पी बी, चारों ही ऑप्शंस में है. ओके, सो एफसी का कोड यूनिकली डिटरमाइन कर पाएंगे तो ऑप्शन ए बी सी आंसर हो जाएगा. अगर यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पाए तो प्रोबेबली ऑप्शन डी आंसर हो सकता है. ओके, नाउ की टू बी हैप्पी, एंड यहां पे हमें क्या क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, चेक करते हैं. सो की टू बी हैप्पी, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, सो हैप्पी इज नोवेयर एल्स. 2 इज हेयर, सो 2 का कोड यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. So common in third and fourth statement, I can say DK. All right. So 2 is DK. So 2 answer नहीं हो सकता. Option C is eliminated. Okay. Now next is happy. Happy is in first statement and the third statement. यहाँ पे इसको पकड़ सकते हैं. So happy is in first and third statement. And common क्या है यहाँ पे? LM is common. So LM का कोड happy होगा. So happy also cannot be the answer. तो अब या तो आंसर की होगा या फिर की और बी, इन दोनों में से कुछ हो सकता है. अब बोथ आर लेफ्ट ओवर्स. ओके, ना की एंड बी, ये जो दो वर्ड्स हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, नॉट इन सेकंड, नॉट इन द लास्ट वन. सो आई कैन नॉट डिटरमाइन यूनिक कोड्स फॉर की और बी. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट कैन बी आइदर की और बी. ऑप्शन डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू मार्क इन दिस केस. ओके,
So option D is correct here. We cannot uniquely determine the code of FC. It can be either key or B. Let's move on to next question. Now next question is from coding and decoding once again. So group coding हम देख चुके हैं. Now this is a different type of coding. हमने 2024 में देखा था कि एक कोडिंग का क्वेश्चन आया था जहां पे जंबल सीक्वेंस थी. यहां पे जंबल सीक्वेंस नहीं है. सो क्रिकेट इज कोडेड एज DTLGPKA. सो चेक करते हैं. क्रिकेट में इनकी अगर मैं नंबर इक्विवेलेंट्स लिखता हूं, सो 3, 18, 9, 3, 11, 5 एंड 20. ओके, कॉरस्पॉन्डिंगली डी के लिए 4, 3 + 1 is 4. All right, T is 20, 18 + 2 is 20. तो पहले क्या हुआ, +1 then +2. L is 12, +3 has happened. 7, 3 + 4 is 7, +4 has happened. So +1 +2 +3 +4. ये तो क्लियरली दिख गया है, राइट? आगे देखते हैं. 16, 11 से 16 +5, 5 से 11 +6, then 20 + 7 is 27. A is 1 or 27. Very simple logic. +1 +2 +3 +4 +5 +6 and so on. They have given one more example. No need to waste time on that. And we can directly calculate the code for banner. Now banner, B + 1 will be C. A + 2 will also be C. तो C से start होना चाहिए आंसर. First two options eliminated. Then N + 3. 13 + 3 is 16. नहीं, 14. MN. 14 + 3 is 17. So it will be Q. Then 14 + 4 is 18. That is R. So CCQR. This is gone. Option D is the leftover answer. So option D is the correct one for question number 11. Let's move on. Next question. Next question is on blood relations. A is the son of father of B. So B का father, A is the son. Okay, B का gender नहीं पता. D is the mother of granddaughter of C. D भी नहीं है, यहां पे C भी नहीं है, छोड़ देते हैं. नेक्स्ट लाइन पे आते हैं. E is daughter of B. So E is daughter of B and D is married to B. D is married to B. अभी तक genders नहीं पता. K is A's son. So K is the son. All right. Perfect. Now D is the mother of granddaughter of C. D is mother. So female and this is male. Not required. We have to find out what is the relation between K and E. K and E same generations. मैंने बताया था same generation तो uncle nephew तो नहीं हो सकते. K and E इनके different parents हैं तो ये brother भी नहीं हो सकते. So answer will be cousin. So option B is the correct answer of this question. Next one. Again a question on blood relations. So Snap 2024 में भी blood relations देखा हमने. यहाँ पे 2 questions देखे हैं हमने, right? So important topic blood relation. ये make a note of it. So blood relations पे थोड़ा ज्यादा time spend करना है आपको. A man goes to a party and meets Rakesh. Rakesh, who is the man's mother's only son's daughter's husband. Wow. So a man goes to a party and meets Rakesh. Rakesh, who is the man's, तो man से start करते हैं. Man's mother's only son. Man की mother का only son यही person होगा. Son's daughter's husband. Okay. So Rakesh is this person. Right? Okay. Now how is man related to Rakesh? Man related to Rakesh. Rakesh की wife का father, which is father-in-law. So the correct answer will be father-in-law. That is option B. Easy question. Question number 14. A series is given with one missing term. Complete the series. Simple question. Okay. Now
Again, this question seems to be a question of alternate series, and a similar thing we have seen in Snap 2024. So concept repeat हो रहा है. So 24 minus 2.5 is 21.5. 21.5 minus 2.5 is 19, a difference of 2.5. Similarly, 26.5 plus 2.5 is 29. So answer should be 29 plus 2.5, that is 31.5. अब इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. Each of the following question has a series of numbers which follow a definite pattern. Identify the incorrect term. Incorrect term का भी Snap 2024 में क्वेश्चन था, तो this is also repeated. अब ये वाली टर्म्स में से incorrect term कैलकुलेट करना है. ओके, नाउ आई स्टार्ट विद द बिगर नंबर्स. 320 से 1605 पे कैसे जाएंगे? So 320 multiplied by 5 plus 5 gives me 1605. So plus 5 किया, multiply 5 करने के बाद, so multiply 5 plus 5. 13 से 14 पे कैसे जा सकते हैं? स्टार्टिंग से शुरू करते हैं. 13 into 1 plus 1 is 14. 14 पे से 27. So 14 multiply 2 plus 2 या minus 2 होना चाहिए, right? सो इस चीज को छोड़ देते हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है यहां पे. सो 81 से 320 ये चेक करते हैं. सो 81 मल्टीप्लाई 4 इज 324 एंड देन माइनस 4 इट इज 320. सो मल्टीप्लाई 4 आया बट नेगेटिव 4. सो ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो सकता है. 27 से 81 पे चलते हैं, राइट? सो 27 मल्टीप्लाई 3 इज ऑलरेडी 81. सो दैट मीन्स ये 27 में कुछ गड़बड़ है. तो अगर मैं यहां पे 14 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 लिखता हूं, दैट इज 26. ओके, एंड देन आई डील विद 26 इन द सिमिलर मैनर. 26 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3. सो 26 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 विल गिव मी 81. सो 81 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहां पे ये जो 27 है उसकी जगह 26 अगर होता तो इस सीक्वेंस में, इस सीरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. सो 27 इज द कल्प्रिट and will mark option C as the answer. Logic आपके सामने है. Okay, next question. Okay, so we'll have to complete the series. Alphabetical series है. Let's see कितना difficult है ये. So first alphabet B, C, D, so E. So I should have E in the answer. सारे options में E है. Then Y, X, W. नाउ y से पहले x आता है, x से पहले w आता है, w से पहले क्या आएगा? v. So EV. I can eliminate one option. Okay. Then the third alphabet x, w, v. So x से पहले w, w से पहले v. Now v से पहले क्या होगा? u. So next alphabet should be u. This is eliminated, this is eliminated, and we have our winner. Option A is the correct answer. All right. Next question, question number 17. Which of the following options follow the same rule as the terms given below? Again, you'll have to complete the series. Now, O, E, G, 15, 5, and 7. R is 18, H is 8, and J is 10. So, plus 3, plus 3, plus 3. Clear. Okay, W is 23 plus 5 हुआ है. M is 13 again plus 5. O is 15 again plus 5. तो फर्स्ट केस में यहां पे प्लस 3 हुआ है एंड देन प्लस 5. तो अब या तो दोबारा से प्लस 3 आएगा, रिपीटेडली चलेगा, या फिर प्लस 7 होना चाहिए नेक्स्ट. 23 प्लस 7 इज 30. 30 इज D. क्या D से कोई ऑप्शन शुरू हो रहा है? नहीं हो रहा. सो 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 का लॉजिक फिट नहीं हुआ. सो प्लस 3 का लॉजिक फिट करने की कोशिश करते हैं. सो 23 प्लस 3 इज 26. Z एक ऑप्शन शुरू हो रहा है, बट कंफर्म करते हैं. 13 प्लस 3 इज 16. इट्स P मैच कर रहा है. लास्ट 18 इज R. तो ZPR ऑप्शन B मैच कर गया. So once again, a very easy question of series, alphabetical series.
Next question. There are 4 options like in a certain way. Choose the one which does not belong to the group. Okay, so odd one out. Again, alphabetical coding decoding series इन्हीं चीजों से related है. Odd one out. GMJ number equivalent लिखते हैं 7, 13 and 10. 7 plus 3 is 10, 10 plus 3 is 13. और I can say that 7 and 13 का average 10 है. कुछ भी बोल सकते हैं. Let's see, write the other numbers. तो कुछ relation, कुछ pattern मिलेगा देखने को. Now M is 13, Q is 17 and O is 15. So once again, yes, 13 and 17 का average 15 है. कुछ तो मैच कर रहा है, बट डिफरेंस यहां पे कुछ और है. आगे चलते हैं. K 11, 16 and 13. Now 11 and 16 का एवरेज 13 नहीं है, तो दिस सीम्स टू बी ऑड वन आउट. Now 4, 8, 6, 4 and 8 का एवरेज 6 है, बिल्कुल मैच कर गया. So option C does not match the pattern that is followed with the other options. So C will be the odd one out. Next question number 19. This is syllogisms. Syllogisms के हमने 2 क्वेश्चंस देखे थे 2024 में. यहां पे देखते हैं कितने क्वेश्चंस आते हैं. Now we'll start with the statement all. जैसे मैंने आपको बताया all या none से स्टार्ट करना चाहिए. All satellites are meteors. So all satellites are meteors. Perfect. Now some planets are stars, some stars are satellites. So satellite यहां पे है, तो स्टार का सर्कल मैं यहां पे बना सकता हूं. So some stars are satellites, good, and some planets are stars. Some planets are stars. So planets का सर्कल यहां पे बन सकता है. 2024 में भी सिमिलर सा ही कुछ डायग्राम बना था हमारा. Okay. Now moving towards conclusions. All stars are meteors. All stars are meteors. बिल्कुल भी नहीं. Wrong. Some planets can possibility. राइट, कंक्लूजन में ही पॉसिबिलिटी है, तो जनरली ये वाली स्टेटमेंट सही होती हैं. सम प्लैनेट्स कैन बी मीटियोर्स. सम प्लैनेट्स अगर यहां पे होता, कुछ ऐसा सर्कल होता, तो मीटियोर्स में हो सकता था, नहीं भी हो सकता. कैन लिखा हुआ है तो हम बोल सकते हैं यस, इट इज अ पॉसिबिलिटी. सो कंक्लूजन नंबर 2, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, टुडे इज सैटरडे. आफ्टर 243 days इट विल बी. कैलेंडर्स का इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता. 243 को 7 से डिवाइड करेंगे एंड विल फाइंड द रिमाइंडर. ओके, सो 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आएगा? 210 चला गया, 33 बचा, 5 आ गया रिमाइंडर. सो आफ्टर 243 days दैट मींस +5 करना है सैटरडे में. सो सैटरडे +5, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे. सो थर्सडे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन है ये. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. Now P said Q likes cricket. Q said I don't like cricket. R said P is lying. Okay, if only one person tells the truth, who are the liars? Now binary logic that was not seen in 2024, that is seen in 2023. Nice. 2025 में appear हो सकता है. पैटर्न देखते हैं किस तरीके से टैकल करते हैं बाइनरी लॉजिक के क्वेश्चन. अब हमें पता है 1% टेल्स द ट्रुथ, तो एक ट्रुथ टेलर है, बाकी दोनों लायर हैं. ठीक है, 2 लायर्स हैं, एक ट्रुथ टेलर. राइट, हमें लायर्स बताने हैं कौन से हैं. नाउ आर सेड पी इज लाइंग. आर बोल रहा है पी झूठ बोल रहा है. पी बोल रहा है क्यू लाइक्स क्रिकेट एंड क्यू बोल रहा है आई डोंट लाइक क्रिकेट. अब इन दोनों की स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है. राइट, सो दोनों फॉल्स तो नहीं हो सकती. एक ट्रू होगा, एक फॉल्स होगा. सो हमें पता है इन दोनों में से एक ना एक ट्रू है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं ये ट्रू है, बाकी दोनों फॉल्स है. अज्यूम, मेरी अजम्पशन, इसमें अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आता, दैट मींस द अजम्पशन दैट आई हैव टेकन इज अ सर्टेनिटी एंड विल गेट द आंसर. ठीक है. नाउ पी सेड क्यू लाइक्स क्रिकेट विच इज ट्रू, तो क्यू को क्रिकेट पसंद होना चाहिए. राइट, क्यू बोल रहा है आई डोंट लाइक क्रिकेट which is false. That means Q को क्रिकेट पसंद होना चाहिए. No contradiction at all. दोबारा से
फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है क्यू लाइक्स क्रिकेट, सो क्यू को क्रिकेट पसंद है, एंड ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो यस क्यू को क्रिकेट पसंद है। क्यू बोल रहा है कि आई डोंट लाइक क्रिकेट, बट वो झूठ बोल रहा है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है और मेरी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, आई लाइक क्रिकेट। दैट मीन्स क्यू को क्रिकेट पसंद है। अभी तक मैच हो रहा है। आर सेड पी इज लाइंग विच इज फॉल्स। मैं बोल रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हो और मैं ही खुद झूठ बोल रहा हूं, तो दैट मीन्स आप सच बोल रहे हो, नेगेशन। So P is not lying. That means P is a truth teller, which is also matching. So first assumption में ही match हो गया. So this assumption is correct. That means Q and R, these are the two liars that we have. All right? अगर ये चीज नहीं होती तो assumption change करते. Assumption change करके भी बता देता हूं मैं. ठीक है ना? So assumption change करेंगे तो मैं क्या करूंगा, इसको true, इसको false और इसको false. अब फर्स्ट और सेकंड में से एक ट्रू और दूसरा फॉल्स तो होगा ही होगा, राइट? अब Q सेड आई डोंट लाइक क्रिकेट विच इज ट्रू, दैट मींस Q को क्रिकेट पसंद नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ P सेड Q लाइक्स क्रिकेट। ओके, Q लाइक्स क्रिकेट, Q को क्रिकेट पसंद है, जो फॉल्स है, तो दैट मींस Q को क्रिकेट पसंद नहीं है, तो मैच कर रहा है। R said P is lying which is false, so that means P is not lying. P should be truth teller, but मैंने P को क्या अज्यूम किया है, false अज्यूम किया है, but P truth teller होना चाहिए था। तो यहां पे contradiction आ गया, right? So cancel हो गया। Okay, so this is how we solve the questions of binary logic. Done? आगे चलते हैं। Question number 22. The angle between the minute hand and hour hand, the time is 8:40. अगेन हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, इजी ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, सो 8:40 रफ पोजीशंस, मिनट हैंड विल बी एग्जैक्टली एट 8, आर हैंड थोड़ा सा 8 से आगे होगा, तो आर हैंड आगे है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा जिसमें आर हैंड पहले आएगा। सो थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर फाइंड आउट करो। सो 30 मल्टीप्लाई 8 minus 11/2 multiplied 40. So it should be 40. 8:40 is the time. So 240 minus 220, that is 20 degrees. So angle will be 20 degrees. Option C is correct. Once again, a question which can be finished in a matter of 15 seconds. Okay. Next, moving on. Again, a question on clocks. If the angle between two hands of the clock is 35 degrees and the hour hand is between 3 and 4 o'clock, what time does the clock show? So, time is between 3 and 4 o'clock, angle is 35 degrees, minute hand पहले है, बाद में है, हमें नहीं पता, तो दो आंसर्स हो सकते हैं। ऑप्शंस में भी ऐसा है, बट आंख बंद करके ऑप्शन डी मार्क नहीं करना है, ठीक है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये एक आंसर आए ही ना, so you will have to cross verify both of them using both the formulas. तो पहला फॉर्मूला यूज करते हैं, थीटा इज इक्वल टू, या फिर फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आपको फॉर्मूला पता है। सो थीटा इज इक्वल टू 11/2m minus 30 multiply 3. The value of h will be 3. Okay, so m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 plus 35 125 into 2, 250 upon 11. So 250 upon 11, that is 228 upon 11. So 22/8 upon 11, option B है हमारे पास, ठीक है? बट डोंट गेट कैरी फॉरवर्ड, दूसरे फॉर्मूले से एक और आंसर आ सकता है, उसको चेक करना है। सो दूसरा फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू 30 into h, which is 3, h is 3, minus 11/2m. ओके, अब इस फॉर्मूले से देखते हैं क्या आंसर आता है। सो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 minus 35, 55 into 2, 110 upon 11, that is exactly 10 minutes. So 10 minutes after 3 o'clock, option A. So since two options cannot be correct, the most appropriate answer to mark will be option D. So option D, both A and B are correct. Okay. Next question number 24. 24 a lengthy question. हमने स्नैप 2024 में भी एक लेंदी सेट देखा था, बट वहां पे 3 क्वेश्चंस रिलेटेड थे।
यहां पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है यहां, ओके, सो लीस्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू दिस वन. Read the following information and answer the question which follows. P, Q, R, S, T, U, V are 8 friends who are seated in row. All of them are facing north. Good. So arrangements, basic arrangements का question है. V is second to the right of U. S is third to the left of Q. There are 3 people sitting between P and W. Neither of P, W are seated at the end positions. So P, W से start कर सकते हैं. W is to the right of P. ये भी दिया हुआ है. So P, 3 people and W. और ये एंड्स पे नहीं है तो इनके आसपास कोई ना कोई होना चाहिए. एंड देयर आर 4 पीपल बिटवीन आर एंड टी, आर बीइंग टू द लेफ्ट ऑफ टी. यहां से भी स्टार्ट कर सकते थे, यहां पे ज्यादा लोग हैं. सो आर बीइंग टू द लेफ्ट ऑफ टी, सो आर बीइंग टू द लेफ्ट 1 2 3 4 एंड देन टी. बट ये एंड्स में है या नहीं है ये नहीं पता. ओके, there are 3 people between T and U. T and U के बीच में 3 लोग हैं. between यहां पे मिसिंग हो गया तो मिसिंग उसको डाल लो. Now T and U के बीच में 3 लोग हैं तो U राइट साइड में तो हो नहीं सकता because there are only 8 chairs. So U has to come at this place. Done? So I'm done with this statement up to this statement. ठीक है? Now, for the first few statements, V sits second to the right of U. V sits second to the right of U. This is also done. S is third to the left of Q. There are 3 people sitting between P and W. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6 chairs are already done. And P and W के बीच में 3 लोग होने चाहिए. अब P and W के बीच में 3 लोग. यहां पे अगर इधर से स्टार्ट करते हैं, I need 2 more chairs. So if I'll make W sit here, P को एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे बैठना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल. सो P को मैं यहां पे बिठाऊंगा, 3 people, then W and then 1 more chair. Done. Okay. S is third to the left of Q. So Q and S, the arrangement is over. Okay. Now 4 of the following are similar in a way. Pick the odd one out. RU sitting adjacent, VT not sitting adjacent, ST sitting adjacent, WQ sitting adjacent. So you know the answer. Answer will be VT, which are not sitting adjacent to each other. Okay. Quickly, next question. Question number 25. Now question number 25, input output sequences. सिर्फ एक ही question है इस पे. You can give it least priority because it will consume time. Simple as that. Okay. 2024 में नहीं दिखा इनपुट आउटपुट, 2023 में था इनपुट आउटपुट. सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बट करना जरूरी है. ओके, सो पहले अंडरस्टैंड करते हैं सीक्वेंस. तो पेप्सी 56, कोक, स्प्राइट. फाइनल स्टेप देखते हैं, कोक 12, फेंटा. राइट, सो वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड नंबर्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ये तो समझ में आ गया. चेक करते हैं क्या किया. कोक, सबसे पहले कोक आ गया एंड 56 सबसे लास्ट में चला गया. सो 2 at a time. राइट, नेक्स्ट सबसे छोटा नंबर आगे आ गया एंड 56 के साथ स्प्राइट, सबसे बड़ा वर्ड और अल्फाबेटिकली सबसे लास्ट वाला वर्ड यहां पे आ गया, अरेंज्ड. सो कोक 12 हो गया. अब वर्ड चाहिए तो कोक के बाद कौन सा वर्ड आएगा, इट विल बी फैंटा. एंड इससे पहले नंबर कौन सा आएगा, 48. सो कोक 12 फेंटा, 48 स्प्राइट, 56. So word number, then number word, then word number, number word. इस तरीके से 4 steps में आंसर आ गया. So question is, how many steps are required to get the desired output for the given input? So given input is this. How many steps will be required? So 4 steps is the maximum number of steps because we have 8 words. इनके लिए 4 steps तो लगेंगे ही. नहीं, हाँ. So 10 है टोटल, 4 अपने आप में अरेंज करेंगे. सो 5th वाला सेट जो है वो अपने आप अरेंज हो सकता है. 4 सेट्स को अरेंज करने के लिए हमें 4 स्टेप्स तो चाहिए ही चाहिए. सो यहां पे मैक्सिमम 4 ही दिया हुआ है. 4 से कम नंबर ऑफ स्टेप्स में आ सकता है आंसर, ये चेक करते हैं. तो सबसे पहले सबसे छोटा सबसे पहला वाला वर्ड एयर. सो ए सबसे पहले आएगा फ्रंट में एंड सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 91. 91 विल गो इन द एंड, विल कंज्यूम 1 स्टेप. एक स्टेप हो गया. देन स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है यहां पे,
24. 24 will come in front, will cross 68 and fly, will require a step. And सबसे लास्ट वाला वर्ड is star. Star will cross 56 eagle, will require one step. ओके, दो स्टेप्स हो चुके हैं, डन. अब ए के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट इज ईगल. ओके, सो ईगल विल कम इन फ्रंट, विल रिक्वायर अ स्टेप साइमल्टेनियसली. सबसे बड़ा नंबर लेफ्ट ओवर्स में से सबसे बड़ा नंबर 68 विल क्रॉस ऑल ऑफ देम, विल गो एट द एंड. सो 3 स्टेप्स आर डन. अब फोर्थ स्टेप में ईगल के बाद 24 से बड़ा नंबर इज 38. 38 फ्रंट में आएगा, फ्लाई को क्रॉस करता हुआ, विल रिक्वायर अ स्टेप. तो 4 स्टेप तो हो गए. एंड देन वर्ड्स में पिग और फ्लाई, फ्लाई विल कम एंड क्रॉस 56 टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, सो पिग विल कम हियर. 4 स्टेप्स हो चुके हैं. अब 5 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, तो 4 आंसर होना चाहिए. एंड जो लेफ्ट ओवर है, पिग भी चला गया, फ्लाई एंड 56, सो फ्लाई एंड 56 ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे एंड विल नॉट कंज्यूम एनी स्टेप. सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 4. डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट अगर टाइम बचा है तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. Now next question is of data interpretation. Now यहां पे ये जो ऊपर दिया हुआ है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, डायरेक्टली क्वेश्चन पे जा सकते हैं टाइम सेव करने के लिए. द टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स ऑन फ्राइडे, सो फ्राइडे के टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स एज यू कैन सी फ्रॉम द टेबल इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ व्यूअर्स ऑन मंडे. सो मंडे के भी व्यूअर्स हैं, तो जस्ट आपको ऐड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल फ्राइडे के व्यूअर्स. सो 175 एंड 125 इन दोनों नंबर्स को ऐड कर सकते हैं बहुत इजीली. 300, 400, 500, 600, 646. Monday 120, 210, 220, 350, 396. एडिशंस थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए. 646 is what percentage more than 396? 646 minus 396 upon 396. इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 250. 250 is what percentage of 396? ये कैलकुलेट करना है. ऑप्शंस देखते हैं. 56, 63, 54, 67. तो पहले हम इसका 60% कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है. सो 396 का 60%, इसको 400 अगर अज्यूम कर लेते हैं, राइट, सो 240 विल बी 60%. 240 से थोड़ा कम ही होगा, तो मेरा आंसर 60% से ज्यादा आना चाहिए. ऑप्शन ए, ऑप्शन सी आर एलिमिनेटेड. ना कितना गैप है? सिर्फ 10 का गैप है. 10 का गैप विल बी कवर्ड बाय अप्रोक्सीमेटली 2 और 3%. सो 63% के आसपास आंसर आना चाहिए, 67 तक नहीं पहुंचेगा. ओके, सो ये कैलकुलेशन हम ओरली भी कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपने परसेंटेजेस कैट के लिए प्रिपेयर किया है, स्नैप के लिए प्रिपेयर किया, तो दिस विल बी अ वेरी इजी थिंग टू डू फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, सो 63 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, again a question of data interpretation but a different set. So number of students in the section given है, percentage of students passed given है, ratio of girls who passed, boys who passed. So passed जितने भी students हैं उनको girls and boys में divide किया हुआ है. Question says in section B if 20 girls passed. Section B की बात हो रही है, 80 total students थे, 40% pass हुए हैं. 40% of 80 is 32. So total number of students who passed is 32, जिसमें से 20 girls हैं. अगर 32 में से 20 गर्ल्स हैं तो रिमेनिंग 12 विल बी बॉयज. सो 20 is to 12, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज हु पास, 20 is to 12. ये आंसर हो जाएगा. दैट्स इट. ओके, सो 5 is to 3. लुक हाउ इजी द क्वेश्चंस आर फ्रॉम डेटा इंटरप्रिटेशन. लास्ट पेपर जो हमने डिस्कस किया था 2024 का, वहां पे भी डीआई के क्वेश्चंस, पाई चार्ट था, कितना इजी पाई चार्ट था. ओके, यहां पे भी सिंस लाइक स्टिल वहां पे पाई चार्ट पे 2 क्वेश्चन थे, यहां पे डेटा डिफरेंट है बट द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28. Now this type of question consumes time, but you need to have a look at an easier way of doing these questions. Academics.
Now, let's understand the question. How many pairs of letters are there in the word academics? कितने pairs हैं letters के which have as many letters between them as in English alphabetical series? So, I'll give you an example. Now, A and D, यहां पे अगर मैं नंबरिंग करता हूं, this is first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. 9 alphabets नंबरिंग करती है. नाउ इनकी इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में नंबर इक्विवेलेंट क्या होते हैं? A is 1, C is 3, 1, 4, 5, 13, 9, 3 and 19. So these are their number equivalent according to the English alphabetical series. अब ये बोल रहा है कि जितने अल्फाबेट्स यहां पे इनके बीच में है उतने ही इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के वहां पे होने चाहिए. Okay, so the number of alphabets that are right now between them should be same as the number of alphabets between those two pairs of alphabets in the actual English alphabetical series. Okay, तो यहां पे क्या करना है? फर्स्ट को फिक्स कर दो, इसको कंपेयर करो सबसे, फिर सेकंड को फिक्स किया, रिमेनिंग से कंपेयर किया, थर्ड को फिक्स किया, रिमेनिंग से कंपेयर किया एंड सो ऑन. तो A एंड C यहां पे डिफरेंस 2 है, यहां पे डिफरेंस 1 है, नॉट टू बी कंसिडर्ड. ये डिफरेंस और ये डिफरेंस अगर सेम होगा हम वो वाले पेयर्स कंसिडर कर लेंगे. तो A एंड C नॉट कंसिडर्ड, A एंड A ऑब्वियसली नॉट. A एंड D यहां पे डिफरेंस 3 है, यहां पे भी डिफरेंस 3 है, इट विल बी कंसिडर्ड. सो A D इज द फर्स्ट वन, फर्स्ट पेयर टू बी कंसिडर्ड. A E difference is 4, difference is 4 will be considered. A M not considered, difference is 12 and 5 not matching. A I not matching, A C not matching, A S not matching. A का काम खत्म. ओके, अब C को इन सब से कंपेयर करना है. C and A difference is 2, यहां पे 1 not considered. C D 1 and 2 not considered. CE difference is 2 and 3 not considered. CM not considered. CI not considered. CC obviously not. And CS not considered. Okay. AD no difference, like same, यहां पे 3 है, यहां पे 1 है. AE यहां पे 4 है, यहां पे 2 है. AM it's different. AI different. AC different. AS different. Cancel हो गया. D and E difference of 1 and 1, yes it will be considered. The third pair we have got. DM difference 9 and 2, difference 5 and 3 not considered. DC नहीं होगा, DS नहीं होगा, खत्म हो गया. EM not considered, EI not considered, EC not considered, not considered. EC close था, यहां पे difference 2 है, यहां पे difference 3. difference किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, यहां पे बोला हुआ है both forward and backward directions. Okay, so this is also gone. यहां पे MI, MC, MS not considered, this not considered, this not considered. Right, so we have only 3 pairs. The answer will be 3. So definitely question lengthy है, so it should be taken if you have time. Also इस टाइप के क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं. राइट, तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा यार, सिर्फ आपको काउंटिंग करनी है, कैलकुलेशन करनी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, बेसिकली डिफरेंस चेक करने हैं, बट हम छोटी सी मिस्टेक कर सकते हैं एग्जाम के प्रेशर में. सो दिस इज नॉट अ वेरी नॉर्मल रेगुलर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड. गलती हो सकती है, प्रायोरिटी कम दे सकते हैं. सारे क्वेश्चंस खत्म करो, फिर इस टाइप के क्वेश्चन पे आ सकते हो. ऑलराइट, सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल अबाउट स्नैप 2023 क्वेश्चंस. समरी में देखेंगे तो यहां पे डायरेक्शन सेंसेस के क्वेश्चंस नहीं है. ओके, ब्लड रिलेशंस, yes we have seen 2 questions. Series, coding decoding, odd one out, we have got the questions from here. Coding decoding में different types of coding, group coding, then alphabetical coding, we have seen each and every kind of question. Series में भी number series, alphabetical series पे plenty of questions were there. Clocks and calendars once again they are repeated. Cubes में से कोई क्वेश्चन नहीं था, डाइस में से कोई क्वेश्चन नहीं था. राइट, सो आई वुड से दैट ओवरऑल अगर मैं बात करूं, सिलॉजिज्म्स यहां पे था 2 क्वेश्चंस सेम इन 2024. सो अगर ओवरऑल कंपैरिजन की बात करें 2023 एंड 2024, मुझे सिमिलर लगे ये दोनों पेपर्स. ओके, लेवल ऑफ डिफिकल्टी डेफिनेटली दोनों में ही लो था.
there were some questions in 2023 जो बहुत लेंदी थे, like input output questions. Then last question जो हमने देखा, right? ऐसा केस 2024 में मेरे को देखने को नहीं मिला. Okay? So overall I would say that revision में आपको ये सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, and specially I would recommend कि भाई क्यूब्स एंड डाइसेस पे क्वेश्चन नहीं आया लास्ट 2 ईयर से, तो इस बार आ सकता है, राइट? डायरेक्शन सेंसेस पे क्वेश्चन नहीं आया, इस बार आ सकता है. ओके, राइट? नाउ हियर वी हैव जस्ट सीन वन स्लॉट ऑफ स्नैप. अदर स्लॉट्स में आया होगा क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रॉम ब्लड रिलेशंस, सॉरी फ्रॉम डायरेक्शन सेंसेस and from cubes and dices, so question मिल सकते हैं. Okay, so friends, that's all from my side for this class. Thank you very much. All the very best for your CAT exam and upcoming examinations. I'll see you again. Good day.